So I think all of you are linked to music. So the common link is music. Yes. You too. And you, And sir. I become a commoner link because of the problem all of you faced, and I became a common link there. And that's why it just came to my mind one fine day that why not I, get all of you together on one platform. So No, only it's a we good five thing. are there It's a today. really, really good thing. Really good Yeah, thing. only we five are there, and I thought, let me, get into this concept and think about how, how our journeys have been going on, because life is all, after all, a journey, and we all of us, go through these journeys. But then we all have ups and downs in lives. So how you have taken it up and how Absolutely. it has changed you would be what I would be very keen on. Let's start with Harjot for the evening today, Yeah. because Harjot was the first one Wow. to have come to me with her problem. She's a very versatile singer, all of you know. She reached the top 6 in Saregama in 2016. She made her Bollywood debut in Badhai Ho, her film first song there. And she has done a playback in many TV serials also. And she was nominated in 2019 for the Mirchi Music Awards also. And to add to all this is something which is very interesting, which probably a lot of you may not be knowing, is that she is working with Pritam ji in Bombay presently, and she's done her course in sound engineering, which I thought was a very good idea. Because in addition to being a No, singer, I have an idea. I have an idea about it. I have some idea about it. yes, so it's good. You should share it with Yeah, us. he knows because he was there. He came there It's few years back, interesting. yes. Interesting. So Arjot, we'll start with you. You were the first one who came to me somewhere in November, December of 2015, Yes. and you had totally recovered from your problem by March of 2016. So Yes. let's start with your experience of how it all happened, what all you went through at that time in life, and how did you recover out of it? Okay, so in 2015, I was a part of a reality show, The Voice India. And I remember कि because every day we were having a lot of rehearsals और रोज बहुत practice होती थी और पूरा दिन मेरी भी गलती थी कि मैं जब नहीं भी जरूरत थी तो भी गाती रहती थी एंड मुझे समझ नहीं आया टेक्निकलिटीज का एंड उसकी वजह से वॉइस अब्यूज हो गया एंड मुझे याद है मेरा एक परफॉर्मेंस था एक राउंड था द वॉइस का और मेरे को बहुत ही एक हाई स्केल का गाना गाना था और बहुत ही पावरफुल सॉन्ग था और उस टाइम मैं स्टेज पे जाने से पहले जब रिहर्स कर रही थी मुझे बहुत अच्छे से याद है इट्स बिन 6 years पर मुझे ये चीज बहुत अच्छे से याद है क्योंकि मैं रिहर्स कर रही हूँ और मेरे पेरेंट्स सब लोग आसपास खड़े हैं और मुझे अभी स्टेज पे परफॉर्म करने जाना है और मेरी हाई नोट्स पे आवाज की जगह हवा निकल रही थी सिर्फ कोई वॉइस नहीं निकल रही थी और आई वाज ट्राइंग टू सिंग मतलब वॉइस निकल ही नहीं रही थी और जितनी थोड़ी बहुत लोअर रेंज में आ रही थी बहुत होर्स थी सो उस टाइम आई डोंट नो हाउ आई परफॉर्म एंड सरप्राइजिंगली इट वेंट रियली वेल आई क्वालिफाइड ऑल्सो टू द नेक्स्ट राउंड बट इवेंचुअली जब मैं कॉम्पिटिशन में आगे बढ़ रही थी तो मेरी वॉइस और खराब होती जा रही थी और बहुत स्ट्रेन पड़ रहा था मुझे गाने में सो आई रिमेम्बर आफ्टर द वॉइस इंडिया मैं वहां पे भी बहुत डॉक्टर्स से मिली ड्यूरिंग द शो एंड बॉम्बे में बहुत सारे डॉक्टर्स को कंसल्ट किया एवरीबडी टोल्ड मी कि या तो यू जस्ट withdraw from the competition and या तो यू कीप गोइंग ऑन एंड आपकी वॉइस और खराब होती जाएगी या फिर यू विड्रॉ फ्रॉम द कॉम्पिटिशन एंड गेट अ सर्जरी डन फॉर वॉइस वोकल कॉर्ड नोड्यूल्स मुझे वोकल कॉर्ड नोड्यूल्स हो गए थे और इट्स द वर्स्ट थिंग फॉर अ वोकलिस्ट कि वोकल कॉर्ड नोड्यूल्स हो जाए बिकॉज यू कांट सिंग यू कांट स्पीक आवाज भी चेंज हो जाती है इट्स नॉट यू सो उसके बाद जब मैं दिल्ली आई इवन दिल्ली में जो जिन ईएनटी को मैं रेगुलरली कंसल्ट करती हूँ उनसे भी कंसल्ट किया इवन ही सेड द सेम थिंग दैट गेट अ सर्जरी डन एंड द वर्स्ट पार्ट अबाउट दिस इज इफ यू गेट अ सर्जरी डन उसके बाद आपका वॉइस सेम होगा या नहीं होगा वो गारंटी नहीं होती दैट्स वन थिंग दैट दे टोल्ड मी और इट वाज रियली स्कैरी कि I can't imagine my life without, singing and
this voice that I have. I don't know कि उसके बाद क्या होता. So I remember अंकल से मैंने एक बार डिस्कस किया ऐसे कि मैं अभी नहीं गा पा रही हूँ और मेरा कुछ शोज भी कुछ भी नहीं कर पा रही थी. एंड हम लोग कहीं मिले थे और अंकल ने बोला कि तू कल ही मेरे क्लिनिक आ जा एंड उसके बाद मैं देखता हूँ, तू आ जा बस. तो आई रिमेम्बर मैं नेक्स्ट डे आपके पास आई थी अपना एक्यूपंक्चर का ट्रीटमेंट करवाने के लिए. और उसके बाद मैंने वो डॉक्टर को भी अभी मैंने उनकी मेडिसिन आई रिमेम्बर कंटिन्यू की थी थोड़े टाइम तक. आपने बोला कि तू कर, उसके बाद अपने आप चेंज देखेगी, अपने आप तेरे को समझ आ जाएगा क्या करना है, या मेडिसिन आगे नहीं कंटिन्यू करनी है, या यू विल फील बेटर. तो उसके कुछ सेशंस के बाद ही एकदम से मैं मतलब आई कुड सिंग, एटलीस्ट आई स्टार्टेड सिंगिंग. मेरी आवाज थोड़ी बेटर हुई, मेरी नॉर्मल जो आवाज है, जो मेरा टोन है, वो वापस आना शुरू हुआ. और उसके बाद मैंने मेडिसिन धीरे धीरे बंद की. और आप आई रिमेम्बर फॉर 6 to 7 months आई कंटिन्यूड द ट्रीटमेंट. उसके बीच में जब डॉक्टर्स ने मुझे बोला था कि तू यू कैन नॉट सिंग, डोंट सिंग, जस्ट गिव योर वॉइस सम रेस्ट, यू हैव टू स्टॉप सिंगिंग फॉर अ फ्यू मंथ्स. अंकल ने बोला तू गा, तू अपना रियाज कर, तू प्रैक्टिस कर, और बाकी मैं संभाल लूंगा. और अंकल इतना पॉजिटिविटी से बोलते हैं कि आई थिंक एवरीबडी नोज दिस हियर, कि वो इतना अच्छे से बोलते हैं कि आप 50% तो आप वैसे ठीक हो जाते हो, क्योंकि इतना अच्छा लगता है कि आपको भी खुशी मिलती है. एंड देन वो जो भी प्रॉब्लम, व्हेन यू गो टू अ डॉक्टर दे टेल यू कि हाँ आपको ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, एंड वो आपको उस चीज के बारे में बताते हैं. अंकल एक पॉजिटिव एस्पेक्ट बताते हैं कि जो भी है हम संभाल लेंगे, तू देख, तू गा. तो वो बहुत अच्छी चीज थी. और मैंने गाना गाना शुरू किया, मैंने इनफैक्ट शोज करने भी शुरू कर दिए. और आई रिमेम्बर कुछ 6-7 months के बाद मतलब आई वॉज ऑलमोस्ट बैक टू नॉर्मल. एंड इट वॉज वेरी मतलब इट वॉज लाइक अ मिरेकल फॉर मी, बिकॉज मेरे को तो बोल दिया था हर डॉक्टर ने कि सर्जरी ही इसका ऑप्शन है. और गाना गाना बंद नहीं करना पड़ा, मैं अपने शोज कंटिन्यू कर पाई. उसके बाद भी मेरी वॉइस वैसी वापस आई. और मैंने उसके बाद एक और रियलिटी शो किया, सारेगामापा किया. और उसमें भी मतलब काफी सारे राउंड्स थे. वहां से भी अंकल को मैं कंसल्ट करती थी. और फिर बीच में जब दिल्ली आती थी तो बीच बीच में सेशन लेती थी. तो आई थिंक I can never thank uncle enough, because it's I don't have a all of us are vocalists. I don't think we can imagine our lives without singing, without without our voices. So this was my journey, how it all happened for me. Great. Thank you, Mahajot, for your kind description of the way you went through it. Now I would like you to sing a song for us, Oh. because I wanted everyone to sing one song, Okay. whichever is more closest to your heart. I don't have my ukulele here in Delhi with me, so I'll just No sing problem. without Yeah, any just sing. instrument. यार वोकलिस्ट तो वैसे ही इतने अच्छे होते हैं, उनका गाना बिना म्यूजिक के भी इतना अच्छा आता है. ये अखिल इज एन एग्जांपल, बैठे बैठे भी गा जाता है. क्लिनिक में भी बैठे हुए गाना गा रहा होता है, हम कर रहा होता है, तो साथ वाले कमरे से आवाज आती है, सर ये कौन है. मैंने कहा ये बताऊंगा नहीं आपको. फिर सब वही पहुंच जाएंगे. हाँ, सर वही पहुंच जाएंगे. अंकल आप भी तो एग्जाम्पल हो इसका. तो मैं अलाउड नहीं हूँ ना अपनी क्लिनिक में हम करना ज्यादा. ठीक है, I'll sing a song जो like मैंने ही गाया है. So I'll sing that. रही ना क्यों पहले जैसे तेरी मेरी बातें सजना, लगे दिल पे तेरों जैसे तेरी मेरी बातें सजना. हो झोंके हवा के न जाने कैसे हुए आंधियों के जैसे, तबाह करके हम दोनों की गए दुनिया. है एक दूजे के हाथों की लकीरों ने मोड़ा रास्ता. हाँ रही ना क्यों पहले जैसे
बातें सजना, तेरे मेरे सपनों का था जो घर, जाने लगी उसे किसकी है नजर, अरमानों से बनाया था उसे, सोचा न था जाएगा यूं बिखर, हाय रुक है गई तेरी मेरी बातें, तन्हा सी हो गई है वो रातें, बेवजह से अब है ये सारी बातें, जाने दो ना क्या है सोचना, झोंकेगी हवा के कैसे हुए आंधियों के जैसे, तबाह करके हम दोनों की गई दुनिया, हाय दूजे के हाथों की लकीरों ने मोड़ा रास्ता, रही ना क्यों पहले जैसे तेरी मेरी बातें सजना, हाँ। Beautiful. थैंक यू। Very nice. विभूति कौन सी मूवी में आ रहा है या कौन सी सीरीज में आ रहा है? ये अंकल एक वेब सीरीज में आया था, वेब सीरीज कौन सी? मेरे आ चुका क्या नाम था? है। द वाइफ करके एक आया The था, Wife. Z5 पे आई थिंक। Very nice. Beautifully sung. थैंक यू।